নমস্কাৰ মই প্ৰিন্টা সুটিয়া প্ৰতিগৰাকী মুছলমানৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ খবৰ লৈ আহিছো প্ৰতিগৰাকী মুছলমানৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে এতিয়া নাজিম নজিৰ কাশ্মীৰী যুৱক নাজিম নজিৰক নিজৰ বন্ধু বুলি পৰিচয় দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে যে নাজিম নজিৰ এজন হট আদৰ্শৱান ব্যক্তি আৰু নাজিম নজিৰে আজি যিখিনি কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে সকলোৱে শলাগ ল'বলগীয়া আৰু নাজিম নজিৰৰ কাহিনী শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব নাজিম নজিৰে কেনেকৈ সৰু এটা ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এজন সফল ব্যক্তি হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী মুছলমান বুলিয়ে নহয় প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে তেওঁ আসলতে আদৰ্শ নাজিম নজিৰ কাশ্মীৰী যুৱক আৰু কাশ্মীৰী যুৱক নাজিম নজিৰক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও তেওঁ বন্ধু বুলি কৈছে নাজিম নজিৰক জম্মু কাশ্মীৰত লগ পালে নাজিম নজিৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুনিলে নাজিমৰ সফলতাৰ কাহিনী নাজিমে কৈ গ'ল কেনেকৈ তেওঁ সফলতাৰ বাট বুলিছে মৌমাখি পালন কৰিছিল তেওঁ কেৱল দুটা মৌমাখিৰ চাক আৰু তাৰ পাছত আত্মনিৰ্ভৰ হৈ উঠিছে নাজিম নজিৰ সঁচাকৈয়ে সৰকাৰী আঁচনিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি নাজিমে যিখিনি কৰিছে তেনেকুৱা কাম কিন্তু সকলোৱে কৰিব পাৰে সেয়া আদৰ্শ নাজিমৰ এই যুৱকজনৰ সৈতে সেলফি উঠিল মোদীয়ে তাৰ পাছতে সেই সেলফিখন পোষ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাজিম নজিৰৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নাজিম নজিৰৰ সৈতে উঠা সেলফি ফটো যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে তেওঁ আগবাঢ়িছে তেওঁ বন্ধু বুলি সম্বোধন কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাজিম নজিৰক এনেকৈ লগ পাইছিল আৰু নাজিম নজিৰে যেতিয়া মোদীৰ সৈতে সেলফি উঠিব বিচাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ উঠা সেই সেলফিখন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই পোষ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফেচবুক পেজত বা টুইটাৰত চালে আপুনি এতিয়াও দেখিব 17 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কালিৰ দিনটোত এইখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে এ মেমৰেবল সেলফি উইথ মাই ফ্ৰেণ্ড নাজিম বুলি কৈছে লগতে তেওঁ কৈছে I was impressed by the good work he is doing. At the public meeting, he requested a selfie and was happy to meet him. নাজিম নজিৰে মোৰ সৈতে এখন সেলফি উঠিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল আৰু মই তেওঁক লগ পাই যথেষ্ট সুখী উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে তেওঁ লিখিছে মাই বেষ্ট উইচেছ ফৰ হিজ ফিউচাৰ এণ্ডেভাৰ্ছ তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুনিলে নাজিম নজিৰে কেনেকৈ সফলতা লাভ কৰিছে নাজিম নজিৰে আজি যিখিনি সফলতা লাভ কৰিছে সেই সফলতাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ হেঙাৰ নাছিল দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে মানুহৰ যদি সৎ নিষ্ঠাৱান ব্যক্তিৰ বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় মানুহ আগবাঢ়িব পাৰে মানুহে যেনেকৈ নহলেও সফল হ'ব পাৰে যদিহে ভাল উদ্দেশ্যৰে মানুহে কাম কৰে নাজিম নজিৰ তেনেকুৱা এক উদাহৰণ আৰু নাজিম নজিৰৰ কাহিনীটো শুনি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও আচৰিত হৈ গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে নাজিম নজিৰৰ দৰে সকলোৱে ভাবিব লাগে সকলোৱে ইচ্ছা কৰিব লাগে আৰু ইচ্ছা থাকিলে যদি সৎ নিষ্ঠাৱান ব্যক্তিৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া তেওঁ সৎভাৱেৰে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ মনোনিৱেশ কৰে আৰু নাজিম নজিৰে সেয়ে কৰি দেখুৱালে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত কেৱল মাত্ৰ দুটা মৌমাখিৰ চাক পুহিছিল আৰু চৰকাৰী ধনেৰে লাভ কৰা সেই বিশেষ মৌমাখিৰ চাক তেওঁ পুহি আজিৰ দিনটোত তেওঁ লাখপতি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে নিশ্চিতভাৱে নাজিম নজিৰৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে এয়া কৰিব পাৰে যদি তেওঁ সৎ হয় তেওঁ যদি নিষ্ঠাৱান ব্যক্তি হয় তেওঁ যদি কাম কৰাত আগ্ৰহী হয় তেওঁ যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ যদি বেটাৰ প্লেন থাকে তেওঁৰ যিমান কম টকা নাথাকক কিয় তাৰ পৰাই তেওঁ উঠি যাব পাৰে সমাজত বিভিন্ন দিশত দুপে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু নাজিম নজিৰ তাৰে এক উদাহৰণ প্ৰতিগৰাকী মুছলমানে গৌৰৱ কৰিব লাগে নাজিম নজিৰক লৈ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নাজিম নজিৰৰ পৰা আদৰ্শ ল'ব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ বন্ধু বুলি উল্লেখ কৰিছে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন্ধু বুলি সম্বোধন কৰি সামাজিক মাধ্যমত এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই পোষ্ট দিছে ফটোখন আপলোড কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চিতভাৱে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ কোটি কোটি মানুহে হেঁপাহ কৰে কোটি কোটি মানুহৰ বাবে সপোন হৈ থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ফটো উঠিবলৈ কিন্তু নাজিম নজিৰৰ ফটোখন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাবক কিমান বেছি ভাল পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুলৱামা এটেক য'ত হৈছিল 2019 চনত 14 ফেব্ৰুৱাৰীত পুলৱামা এটেক হোৱাৰ সেই বিশেষ ঠাইডোখৰৰ পৰা কেৱল 2 কিলোমিটাৰ নিলগত নাজিম নজিৰৰ ঘৰ আৰু পুলৱামাৰ এই বাসিন্দা নাজিম নজিৰক লৈ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী গৌৰৱান্বিত নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক আজি গৌৰৱান্বিত হ'ব লাগে নাজিম নজিৰক লৈ নাজিম নজিৰ একেবাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আছিল কিন্তু দুটা মাত্ৰ মৌমাখিৰ চাক আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ ব্যৱসায় আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আজি বিভিন্ন দিশত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আজি তেওঁ নিজে সফল তেনেকুৱা নহয় তেওঁ বিভিন্নজনক তেওঁৰ কামৰ মাজত নিয়োজিত কৰিছে তেওঁ বিভিন্নজনক আজি সফলতাৰ আঁৰত
নাজিম নজিৰ আছে বুলি ক'ব পাৰি। নাজিম নজিৰে বহুজনক আজি আগুৱাই লৈ আহিছে, কাম দিছে। তেওঁৰ জৰিয়তে নাজিম নজিৰৰ জৰিয়তে বহুকেইটা পৰিয়াল চলি আছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। নাজিম নজিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যেতিয়া সভাত লগ পাইছিল, তাৰ পাছতে নাজিম নজিৰে নিজৰ কাহিনীটো কেনেকৈ শুনাইছিল, কি কৈছিল, শুনক। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं
तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं, मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए, मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूंगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं, मैं SP जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा।